So welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to India AI Summit 2026. Second issue is India-US relations a new era. Third issue is related to death sentence in India. Fourth issue is related to one nation one election. So let's discuss all the issues in detail. In this lecture, we will discuss about India AI Summit 2026. Why a news? The India AI Impact Summit 2026 is a 5-day global gathering summit held from 16 to 20 February 2026 at Bharat Mandapam, New Delhi. Recently, India AI Impact Summit 2026 जो कि 5-day global gathering summit है न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में 16 to 20 फरवरी तक कंडक्ट किया जा रहा है. It is significant for being the first major global AI governance forum hosted in the Global South. ग्लोबल साउथ में होस्ट किया जाने वाला ये फर्स्ट मेजर ग्लोबल एआई गवर्नेंस फोरम है. कोर फ्रेमवर्क ऑफ एआई इंडिया समिट. समिट्स स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय टू की कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स. नंबर 1 3 सूत्राज. नंबर 2 7 चक्राज. नंबर 1 3 सूत्राज. पीपल ह्यूमन सेंट्रिक प्लेनेट सस्टेनेबल रिसोर्स एफिशिएंट प्रोग्रेस इंक्लूसिव ग्रोथ. Number 2 7 chakras. It means themes of action, human capital, skilling and a workforce transition, inclusion for social empowerment. It includes multilingual and accessible AI, safe and trusted AI, governance, transparency and auditing, resilience, innovation and efficiency, frugal and sustainable AI infrastructure, science, AI enabled research and scientific discovery, democratizing AI resources, equitable access to compute and data, AI for economic growth and social good, sector specific applications in health, agriculture, and governance, key initiatives and announcement. Number 1 India AI mission progress. India has scaled its compute capacity to 38,000 GPUs and plan to establish 570 data and AI labs nationwide. इंडिया ने अपना कंप्यूट कैपेसिटी 38,000 जीपीयूज तक स्केलिंग किया है. साथ ही इंडिया के अंदर 570 डाटा एंड एआई लैब्स ओपन करने का इस्टेब्लिश करने का प्लान किया गया है. नंबर ऑफ फाउंडेशनल मॉडल्स. लॉन्च ऑफ 8 इंडिजिनस मॉडल्स इंक्लूडिंग भारत जैन एंड ब्रह्म एआई. 8 इंडिजिनस मॉडल्स इंडिया लॉन्च करने वाला है जिसके अंदर भारत जैन एंड ब्रह्म एआई भी इंक्लूड है. नंबर 3 ग्लोबल इनोवेशन चैलेंज इंक्लूड्स युवा एआई बार HER एंड एआई फॉर ऑल. नंबर 4 एक्नोलेज कंपेंडियम्स रिलीज ऑफ सेक्टोरल केस बुक ऑन एआई इन हेल्थ एग्रीकल्चर एनर्जी एंड एजुकेशन ऑन 17 फरवरी. इंडिया 17 फरवरी इट मीन्स टुमारो सेक्टोरल केस बुक जो कि एआई से रिलेटेड है स्पेशली हेल्थ एग्रीकल्चर एनर्जी एंड एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है. नंबर 5 इंडिया एआई फेलोशिप expanded to support 13,500 scholars across undergraduate, postgraduate and PhD levels. Strategic significance of this summit. प्रेजेंट में जो एक समिट कंडक्ट किया जा रहा है इस समिट के क्या सिग्निफिकेंस है. नंबर 1 ग्लोबल पोजिशनिंग. पोजिशंस इंडिया एज अ नर्व सेंटर फॉर ग्लोबल एआई डायलॉग ब्रिजिंग द डिवाइड बिटवीन हाई लेवल पॉलिसी एंड रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन. ये समिट इंडिया को ग्लोबल एआई डायलॉग का एक नर्व सेंटर पोजीशन गिवन करेगा. साथ ही हाई लेवल पॉलिसी एंड रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन के बिटवीन जो डिवाइड है उस डिवाइड को ब्रिजिंग करने का वर्क करेगा. नंबर 2 ग्लोबल साउथ लीडरशिप amplifies the voice of developing nations in shaping ethical frameworks that reflect diverse cultural and linguistic context. नंबर 3 डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट
Attendance included over 20 heads of states, including France, Brazil, and tech leaders like Sundar Pichai and Sam Altman. इस समिट के अंदर 20 कंट्रीज के हेड इंक्लूडिंग फ्रांस एंड ब्राजील अटेंड हो रहे हैं। साथ ही कुछ टेक लीडर्स सुंदर पिचाई एंड सैम एल्टमन यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। Notably, a Chinese delegation was invited, signaling a potentially thaw in bilateral tech ties. चाइनीज डेलीगेशन को भी इनवाइट किया गया है। ऐसा सिग्नल शो हो रहा है कि टेक सेक्टर में कुछ बायलैटरल टाइज इंडिया और चाइना के बिटवीन कंडक्ट किए जा सकते हैं। In this lecture, we will discuss India and US relations, a new era. Lecture is important for GS paper 2. India-US relations have evolved from hesitant allies during the Cold War to indispensable partner in 21st century. इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस हेजिटेंट एलिज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर से लेकर 21st सेंचुरी के इंडिस्पेंसेबल पार्टनरशिप तक इवॉल्व हुए हैं। इट मींस कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग इंडिया एंड यूएस के रिलेशन उतना गुड नहीं था, बट 21st सेंचुरी में ये अब इंडिस्पेंसेबल पार्टनर्स बन चुके हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस फ्रॉम एस्ट्रेंजमेंट टू एंगेजमेंट। The relationship between India and US can be categorized into four distinct phases. इंडिया एंड यूएस के बिटवीन रिलेशंस को 4 डिस्टिंक्ट फेजेज में डिवाइड किया जा सकता है। फेज 1 1947 to 1991 द एरा ऑफ एस्ट्रेंजमेंट। फेज 2 1991 to 2000 पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशंस। फेज 3 2000 to 2014 द टर्निंग पॉइंट। फेज 4 2014 to present strategic convergence. Phase 1 1947 to 1991 द एरा ऑफ एस्ट्रेंजमेंट। इस फेज के अंडर इंडिया और यूएस के रिलेशंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितने 1991 के बाद हुए। कोल्ड वॉर डायनेमिक्स। इंडिया पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड इट्स क्लोज टाइज विद द सोवियत यूनियन क्रिएटेड फ्रिक्शन विद यूएस। 1947 to 1991 पीरियड के ड्यूरिंग इंडिया का पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी रहा है। साथ ही सोवियत यूनियन के साथ इंडिया का जो क्लोज टाइज इस फेज के ड्यूरिंग रहा है, इस क्लोज टाइज ने यूएस के साथ फ्रिक्शन क्रिएट किए थे। द पाकिस्तान फैक्टर। द यूएस saw Pakistan as a key friend, while India viewed this as a threat to regional stability. फर्स्ट फेज के ड्यूरिंग पाकिस्तान और यूएस क्लोज फ्रेंड रहे हैं। इंडिया ने इस फ्रेंडशिप को रीजनल स्टेबिलिटी के थ्रेट के तौर पर व्यू किया है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फ्रिक्शन। ड्यू टू इंडिया 1974 स्माइलिंग विद द न्यूक्लियर टेस्ट, यूएस imposed sanctions on India and created nuclear supplier group to restrict technology flow to India. 1974 में इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। इस टेस्ट की वजह से यूएस ने इंडिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस इंपोज किए। साथ ही इंडिया में टेक्नोलॉजी फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यूएस ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्रिएट किया। सेकेंड फेज 1991 to 2000 पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशंस। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इंडिया 1991 रिफॉर्म्स ओपन इट्स मार्केट अट्रैक्टिंग यूएस इन्वेस्टमेंट। 1991 में इंडिया ने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, मार्केट्स को ओपन किया, यूएस इन्वेस्टमेंट इसकी वजह से इंडिया में अट्रैक्ट हुआ। पोखरण सेकंड 1998 आफ्टर इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट रिलेशंस विद यूएस डिप्ड। 1998 में पोखरण टेस्टिंग किया जाता है जो कि एक न्यूक्लियर टेस्ट था। इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग भी इंडिया एंड यूएस के रिलेशन थोड़ा डिप्ड हुए। थर्ड फेज 2000 to 2014 द टर्निंग पॉइंट। सिविल न्यूक्लियर डील 2008। The historic India-US civil nuclear deal, also known as the 123 Agreement, was officially signed on October 10, 2008. India and US के between historic civil nuclear deal, which is also known as a 123 Agreement, officially 10th October 2008 में साइन किया गया।
US recognized India as a responsible nuclear partner despite being a non-signatory to NPT. यूएस ने इंडिया को रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पर रीऑर्गेनाइज किया, जबकि इंडिया एनपीटी का नॉन सिग्नेटरी मेंबर है। काउंटर टेररिज्म पोस्ट 9/11 बोथ नेशंस कोऑपरेट इन फाइटिंग ग्लोबल टेररिज्म। 9/11 इंसिडेंट के बाद से ही इंडिया एंड यूएस ग्लोबल टेररिज्म से फाइट करने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। 2014 टू प्रेजेंट फोर्थ फेज स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस elevated to a comprehensive global strategic partnership in 2020। 2020 में इंडिया और यूएस के बीच कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया जाता है। कॉमन कंसर्न ओवर अ राइजिंग एंड असर्टिव चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो असर्टिवनेस इंक्रीज हो रहा है, इसको लेकर इंडिया एंड यूएस दोनों के कॉमन कंसर्न है। की पिलर्स ऑफ करंट कोऑपरेशन इंडिया एंड यूएस के बिटवीन करंट कोऑपरेशन के की पिलर्स क्या क्या है? डिफेंस इंडिया इज अ मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ यूएस, signed the four foundational agreement जिसोमिया, लेमोआ, कोमकासा एंड बेका। इंडिया यूएस का एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। इंडिया एंड यूएस के बीच में फोर फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, सच एज जिसोमिया, लेमोआ, कोमकासा एंड बेका। टेक्नोलॉजी ICAT इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फोकसिंग ऑन AI, सेमीकंडक्टर्स एंड स्पेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर एंड स्पेस पर कोऑपरेट करने के लिए इंडिया और यूएस के बिटवीन ICAT साइन किया गया। ICAT मीन्स इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। नासा इसरो जॉइंट मिशन निसार इंडिया एंड यूएस के बिटवीन स्पेशली स्पेस एजेंसीज के बिटवीन निसार सैटेलाइट लॉन्च किया गया, दोनों को कोऑपरेशन से इसको लॉन्च किया गया। जियोपॉलिटिक्स कोलैबोरेशन इन द क्वाड एंड I2U2 to ensure a free and open Indo-Pacific। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को इंश्योर करने के लिए इंडिया एंड यूएस दोनों क्वाड एंड I2U2 जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में एक दूसरे का कोऑपरेट कर रहे हैं। क्वाड के अंदर 4 मेंबर कंट्रीज इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया हैं। I2U2 के अंदर इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई इंक्लूड हैं। और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन और इनका मेंबर कंट्रीज इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड ओपन करने के लिए इनिशिएटिव्स या कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को। इकोनॉमी द यूएस इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया है ट्रेड सरप्लस विद द यूएस। यूएस के साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस में रहा है। पीपल टू पीपल द 4 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा एक्ट्स एज अ लिविंग ब्रिज इन्फ्लुएंसिंग यूएस पॉलिसी विया द समोसा सॉसेस इन कांग्रेस। इंडिया के अबाउट 4 मिलियन पीपल यूएस के अंदर लिविंग कर रहे हैं, जो कि यूएस पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए कैपेसिटी रखते हैं। मेजर चैलेंजेस एंड फ्रिक्शन पॉइंट इंडिया एंड यूएस के बीच में मेजर चैलेंजेस एंड फ्रिक्शन पॉइंट्स क्या क्या हैं? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया रिफ्यूजल टू कंडेम रशिया ओवर द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स परचेज ऑफ द S-400 मिसाइल रिस्किंग कार्सा सैंक्शंस। रशिया एंड यूक्रेन वॉर पर रशिया को वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कंडेम किया गया, बट इंडिया ने इस कंडेमनेशन से रिफ्यूज किया। S-400 मिसाइल भी इंडिया ने रशिया से परचेज किया। इस तरह के इश्यूज से इंडिया को फियर है कि यूएस इंडिया के ऊपर कार्सा सैंक्शंस इंपोज कर सकता है। ट्रेड एंड आईपी राइट्स डिस्प्यूट्स ओवर H-1B वीजाज, हाई इंडियन टैरिफ्स एंड यूएस कंसर्न ओवर इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजाइन। ट्रेड एंड आईपी राइट्स से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स हैं, स्पेशली H-1B वीजा को लेकर, हाई इंडियन टैरिफ को लेकर एंड इंडिया का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिजाइम को लेकर यूएस कंसर्न रेज करता रहा है। ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी पीरियडिक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट क्रिटिसाइजिंग इंडिया ऑन रिलीजियस एंड प्रेस फ्रीडम ऑफन लेड टू डिप्लोमेटिक वॉर ऑफ वर्ड्स। रिलीजियस एंड प्रेस फ्रीडम को लेकर यूएस इंडिया को कई बार क्रिटिसाइज कर चुका है और
इस तरह के इश्यूज की वजह से डिप्लोमेटिक वॉर ऑफ वर्ड्स लीड होते हैं। डाटा लोकलाइजेशन, द यूएस टेक जायंट्स oppose India's push for local data storage under the Digital Personal Data Protection Act। इंडिया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लोकल डाटा स्टोरेज को पुश करता है। यूएस टेक जायंट कंपनीज ने इंडिया के इस इनिशिएटिव का ओपोज किया है, जिसकी वजह से इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस के बिटवीन कंसर्न रेज होते हैं। व्हाट इज वे फॉरवर्ड, बैलेंस ऑफ पावर, इंडिया नीड द यूएस फॉर हाई टेक ट्रांसफर एंड टू बैलेंस चाइना। ग्लोबल गवर्नेंस, the US support India's permanent seat in reformed UN Security Council and its entry into the NSG। यूएस ने इंडिया का ऑलवेज सपोर्ट किया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट होनी चाहिए। एनएसजी में इंडिया के एंट्री के लिए यूएस ने ऑलवेज सपोर्ट किया है। In this session, we will discuss about death penalty in India, fewer confirmation, more acquittals by courts. Why news? Recently, annual death penalty statistics report released by Square Circle Clinic at Nalsar. Recently, स्क्वायर सर्कल क्लिनिक के द्वारा एनुअल डेथ पेनल्टी स्टेटिस्टिक रिपोर्ट रिलीज किया गया है। एज ऑफ 31 दिसंबर 2025, 550 men and 24 women were on death row in India, a 43.5% increase in the country's death row population since 2016. Last year, इंडिया में about 550 men and 24 women को डेथ पेनल्टी गिवन किया गया। ओनली डेथ सेंटेंस यहाँ पर ये गिवन किया गया। 2016 के कंपेयर में ये 43.5% इंक्रीज रहा है। About 45% were on a death row for murder, while 37% were on a death row for murder involving sexual offenses. लास्ट ईयर जितने भी पर्सन्स को डेथ पेनल्टी जजमेंट गिवन किया गया जुडिशरी के द्वारा, इनमें से 45% जो ऑफेंस किए गए पर्सन्स के द्वारा वो मर्डर से रिलेटेड थे, एंड 30% पर्सन ऐसे थे जो कि मर्डर इन्वॉल्विंग सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड थे। पर्सन ऑन डेथ रो एज ऑन दिसंबर 31, 2016 से लेकर 2025 तक कितने पर्सन्स को डेथ सेंटेंस गिवन किया गया। इट मीन्स जो डेथ सेंटेंस के रो में थे 2016 में 400, 2017 366, 2018 में 426, 2019 378, 2022 539, 2023 561, 2024 573, 2025 575। इट मीन्स लास्ट ईयर सबसे ज्यादा पर्सन को जुडिशरी के द्वारा डेथ सेंटेंस जजमेंट गिवन किया गया। Number of persons who were removed from the death row between January 1 to December 31, 2016 to 2025 का ये डाटा है। इस ईयर कितने पर्सन्स को डेथ रो से रिमूव किया गया। 2016 में 92 पर्सन्स का डेथ सेंटेंस रिमूव किया गया। 2017 87, 2024 142, 2025 एडमिशन लास्ट ईयर 138 पर्सन्स का डेथ सेंटेंस रिमूव किया गया। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी से रिलेटेड लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है। आर्टिकल 21 guarantees the right to life. The Supreme Court has ruled that capital punishment is constitutional if carried out via fair, just and reasonable procedure. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ की गारंटी गिवन की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल गिवन किया कि कैपिटल पनिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है अगर इसको फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर के साथ कैरी आउट किया जाता है।
Executive clemency. Under Article 72, the President of India has the power to grant pardons or commute death sentence. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर गिवन किया गया, डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकता है, पार्डन गिवन कर सकता है। आर्टिकल 161 gives similar power to governors, but they cannot pardon a death sentence. आर्टिकल 160 के अकॉर्डिंग स्टेट में गवर्नर को भी सिमिलर पावर गिवन की गई है, बट डेथ सेंटेंस के केस में पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास नहीं होता है। BNS provisions. The 2023 Act expanded the death penalty scope from 12 to 18 offences, including lynching and certain crimes against minors. 2023 BNS के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। इट मीन्स BNS प्रोविजन 2023 ये लॉन्च किए गए थे। डेथ पेनल्टी स्कोप को 12 से 18 किया गया। इट मीन्स 18 ऑफेंसेस। 2023 से पहले 12 ऑफेंसेस ऐसे हुआ करते थे जिनके लिए डेथ पेनल्टी प्रोविजन की गई थी, बट ये प्रोविजन अब 12 से 18 कर दिए गए हैं, जिसके अंदर लैंचिंग एंड सर्टेन क्राइम अगेंस्ट माइनर्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए। रिसेंट जुडिशियल ट्रेंड्स. लास्ट ईयर about 550 men and 24 women were on death row in India, a 43.5% increase in the country's death row population since 2016, 45% for murder, 37% for murder involving sexual offense. Over the last decade, the Session Court imposed 1,310 death sentences. लास्ट डिकेड में सेशन कोर्ट के द्वारा अबाउट 1310 डेथ सेंटेंसेस इम्पोज किए। 842 कंसिडर्ड बाय हाई कोर्ट। सेशन कोर्ट के द्वारा इम्पोज किए गए जजमेंट या इम्पोज किए गए डेथ सेंटेंस का हाई कोर्ट में अपील किया जाता है। इट मीन्स अबाउट 842 केस हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में 70 केस को अपहेल्ड करके रखा जाता है। इट मीन्स हाई कोर्ट ने इन 842 केसेस में 70% का डेथ सेंटेंस अपहेल्ड किया। 37 ऑफ देम वर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड नन वर कंफर्म्ड। 37 केस सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और इनमें से किसी भी केस को डेथ सेंटेंस के लिए कंफर्म नहीं किया गया। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि हाईएस्ट लेवल होता है जुडिशरी का, अपीलेट बॉडी होता है, लास्ट कुछ ईयर्स में डेथ सेंटेंस गिवन नहीं किया गया। लोअर लेवल पर हम देख रहे हैं कि सेशन कोर्ट के द्वारा 1310 डेथ सेंटेंस गिवन किए गए लास्ट 1 डिकेड के अंदर। हाई कोर्ट में मैटर जाता है, हाई कोर्ट में ये नंबर रिड्यूस होकर 70 रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट में ये नंबर 0 हो जाता है। द नंबर ऑफ केसेस confirmed by the High Court has reduced by more than 60% since 2019. Supreme Court has not confirmed any death sentence in the last 3 years. लास्ट 3 ईयर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस नहीं गिवन किया गया है, बट इन 2025 सुप्रीम कोर्ट एक्विटेड एंड रिलीज 10 डेथ रो प्रिजनर्स, द हाईएस्ट सिंस 2016. लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने अबाउट 10 डेथ रो प्रिजनर्स को एक्विट किया है, रिलीज किया है, जो कि 2016 के कंपेयर में हाईएस्ट है। इस डाटा से ये कंक्लूजन हम टेकिंग कर सकते हैं कि लोअर जुडिशरी में जहां डेथ सेंटेंस गिवन किए जा रहे हैं लार्ज नंबर में, हाई कोर्ट में वो नंबर रिड्यूस हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक रीच करते ये 0 हो रहा है। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स कन्फर्मेशन. एवरी डेथ सेंटेंस बाय सेशन कोर्ट मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय हाई कोर्ट. एवरी डेथ सेंटेंस जो कि सेशन कोर्ट के द्वारा गिवन किया गया है, हाई कोर्ट के द्वारा कन्फर्म होना चाहिए। जब तक हाई कोर्ट कन्फर्म नहीं करेगा तब तक सेशन कोर्ट के द्वारा गिवन किए गए डेथ सेंटेंस को
कंफर्म या क्लियर नहीं किया जाएगा। मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन primarily hanging by a neck, but Supreme Court is currently reviewing a PIL seeking more humane methods like lethal injection। इंडिया में एग्जीक्यूशन का जो मेन मेथड है वो हैंगिंग बाय नेक है, बट सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन मेथड से रिलेटेड एक PIL को रिव्यू कर रही है, जिसके अंदर लिथाल इंजेक्शन गिवन करने का प्रोविजन होगा। इट मीन्स हैंगिंग करने का सिस्टम यहाँ क्लोज हो जाएगा। 14-day rule: there must be at least a 14-day gap between the rejection of a mercy petition and the execution to allow the convict to settle affairs and seek final legal redress। Should death penalty be stopped in India now? क्या इंडिया में डेथ पेनल्टी स्टॉप होना चाहिए? Complex issue in India, the debate over whether the death penalty should be stopped is a complex issue involving legal, ethical, and practical consideration। डेथ पेनल्टी स्टॉप होना चाहिए या नहीं, इससे रिलेटेड डिबेट एक कॉम्प्लेक्स डिबेट है, जिसके अंदर लीगल, एथिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस इंक्लूड हैं। द करंट लीगल स्टैंडिंग एज established by the Supreme Court is that capital punishment is constitutional, but death penalty must be reserved only for the rarest of rare cases। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो करंट लीगल स्टैंडिंग डेथ पेनल्टी से रिलेटेड है वो ये है कि कैपिटल पनिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के लिए डेथ पेनल्टी को भी रिजर्व करके रखा गया है। आर्गुमेंट फॉर अबोलिशिंग द डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी को अबोलिश करने वाले लोगों के क्या क्या आर्गुमेंट हैं? Advocate for ending the death penalty often highlight its finality and potential for error within the justice system। Lack of deterrence: there is no conclusive empirical evidence that the death penalty deters crime more efficiently than life imprisonment। Socio-economic bias: research like the Death Penalty India report indicate that nearly 75% of death row convicts come from socio-economically marginalized background, often unable to afford effective legal representation। Human right and dignity: critics argue it violates the fundamental right to life guaranteed under Article 21 of Indian Constitution, and is contrary to the reformative goal of modern penology। क्रिटिक्स का ये आर्गुमेंट है कि राइट टू लाइफ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट के तौर पर गारंटी गिवन किया गया है, डेथ पेनल्टी उसको वायलेट करता है। रिस्क ऑफ इरिवर्सिबल एरर: इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज नॉट infallible। If an innocent person is executed, the error cannot be rectified। For instance, a 2025 report noted that the Supreme Court acquitted 10 death row prisoners, the highest in a decade, highlighting concern over wrongful convictions। Argument for retaining death penalty: डेथ पेनल्टी को रिटेन करने वाले पर्सन्स का क्या आर्गुमेंट है? Supporters of death penalty emphasize its role in retribution and national security। डेथ पेनल्टी के सपोर्टर्स का कहना है कि डेथ पेनल्टी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस: इट इज आर्ग्यू दैट सर्टेन हीनस क्राइम सच एज ब्रूटल रेप और मास मर्डर्स shock the collective conscience of society, and death sentence should be given as a form of proportional justice। सपोर्टर्स का ये आर्गुमेंट है कि सर्टेन हीनस क्राइम सच एज ब्रूटल रेप एंड मास मर्डर ये सोसाइटी की कलेक्टिव कॉन्साइंस को शॉक कर देते हैं, एंड प्रोपोर्शनल जस्टिस के तौर पर डेथ पेनल्टी सुटेबल है। नेशनल सिक्योरिटी: सपोर्टर्स आर्ग्यू इट इज नेसेसरी टू टूल फॉर डीलिंग विद टेररिज्म एंड वैगिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट where offenders pose a permanent threat to nation's existence। Preservation of recidivism: education ensures that a dangerous offender can never re-offend, providing absolute protection to the public। Legal and judicial perspective: rarest of the rare doctrine, the Supreme Court
case of Bachan Singh versus State of Punjab established that the death penalty should only be applied in exceptional cases where life imprisonment is not an adequate alternative. 1980 के बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन गिवन किया। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी ओनली तभी अप्लाई किया जाना चाहिए, एक एक्सेप्शनल केस में अप्लाई किया जाना चाहिए जहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एडिक्वेट नहीं है। लॉ कमीशन रिकमेंडेशन। The 262nd report recommended the abolition of the death penalty for all crimes except those related to terrorism and waging war against the state. 262nd लॉ कमीशन जो रिपोर्ट रही है, इस रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि इंडिया में डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर दी जानी चाहिए, बट टेररिज्म एंड वेगिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट के केस में डेथ पेनल्टी कंटिन्यू रहनी चाहिए। रिसेंट जुडिशियल ट्रेंड्स। The Supreme Court has shown recent reluctance to confirm death sentence, often commuting them to life imprisonment. सुप्रीम कोर्ट भी अब डेथ सेंटेंस को कंफर्म करने के रिस्पेक्ट में रिलक्टेंस शो कर रही है। ज्यादातर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में इनको कन्वर्ट किया जा रहा है। इट मींस लोअर कोर्ट्स के द्वारा जो भी डेथ सेंटेंस गिवन किए जा रहे हैं उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। In this session, we will discuss about a one nation, a one election. Is simultaneous election is a violation of a basic structure of Constitution of India. Simultaneous elections do not violate the basic structure of Constitution or its federal framework. Former CJI B.R. Gawai told Parliament's Joint Committee reviewing the Constitution 129th Amendment Bill 2024, which aims to synchronize elections for the Lok Sabha and assemblies. रिसेंटली फॉर्मर सीजेआई बीआर गवई ने लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 को रिव्यू करने वाली पार्लियामेंट ज्वाइंट कमेटी से कहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इट्स फेडरल फ्रेमवर्क का वायलेशन नहीं है। The structure of the elections and voter rights remain the same, and therefore the amendment would be constitutional. सीजेआई बीआर गवई ने कहा है कि इस अमेंडमेंट से इलेक्शन का स्ट्रक्चर एंड वोटर राइट पर कोई एफर्ट नहीं पड़ेगा और इसलिए ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है। व्हाट इज द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया? Pre-independence context. The concept of simultaneous election is rooted in the colonial electoral system under the Government of India at 1935. Elections were aligned for legislative bodies under British rule. Simultaneous elections का concept इंडिया में colonial electoral system से रूट हुआ है। It means Government of India at 1935 से simultaneous elections का concept रूट हुआ है। ब्रिटिश इंडिया के ड्यूरिंग ब्रिटिश लेजिस्लेटिव बॉडीज के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा 1952 टू 1967, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952। इंडिया बिगन इट्स डेमोक्रेटिक जर्नी विद साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर द लोकसभा एंड ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इंडिया ने अपनी डेमोक्रेटिक जर्नी लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस के साथ कंडक्ट किए। कंटिन्यूएशन इन 1957, 1962 एंड 1967 simultaneous elections were successfully conducted ensuring political and administrative stability. 1957, 62 एंड 67 में इंडिया के अंदर लोकसभा एंड वेरियस स्टेट असेंबलीज के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट किए गए। साइमल्टेनियस इलेक्शंस पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी इंश्योर करती है।
Disruption of simultaneity 1968-69. The cycle was disrupted due to the premature dissolution of some state assemblies in 1968-69, like in Haryana and Kerala. Simultaneous elections की यह continuity कुछ स्टेट में स्टेट असेंबलीज के प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन के साथ डिसकंटिन्यू हो जाती है। 1968-69 में हरियाणा एंड केरला स्टेट असेंबलीज का डिसोल्यूशन होता है और यहां से साइमल्टेनियस इलेक्शंस की कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। In 1970, the Lok Sabha was dissolved before completing its term, which led to separate election cycle for the Lok Sabha and various state assemblies. 1970 में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है अपना टर्म कंप्लीट करने से पहले ही, और अब यहाँ पर लोकसभा एंड वेरियस स्टेट असेंबलीज के लिए जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुआ करते थे वो फुल्ली तरीके से ब्रेक हो जाता है एंड सेपरेट इलेक्शन साइकिल बन जाते हैं। अटेम्प्ट्स टू रिविजिट वन नेशन वन इलेक्शन। इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट्स किए गए हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 117th रिपोर्ट 1999। Law Commission advocated simultaneous election, emphasizing the reduction of election-related disruptions and cost. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 117th रिपोर्ट के अंडर भी इलेक्शन रिलेटेड डिसरप्शंस एंड कॉस्ट से रिलेटेड कंसर्न रेज किए गए एंड सिमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए एडवोकेट किया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 2015 it highlighted the benefit of one nation one election, including curbing electoral expenses and ensuring uninterrupted governance. 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट्स को हाईलाइट किया, जिसके अंदर इलेक्टोरल एक्सपेंस को कर्ब करने के लिए एंड अनइंटरप्टेड गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर बेनिफिट शो किए गए। नीति आयोग रिपोर्ट 2017 report proposed a roadmap to introduce one nation one election। 2017 में नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी वन नेशन वन इलेक्शन इंट्रोड्यूस करने के लिए रोड मैप प्रपोज किया। व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन इलेक्शन के की बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन इलेक्टोरल कॉस्ट। नंबर 2, streamlining governance and reducing policy paralysis. Number 3, curtailment of electoral malpractices. Number 3, enhanced voter engagement and turnout. Number 4, optimized utilization of security forces. Number 5, minimizing disruptions to economic activity. Number 6, greater alignment in development goal. Number 1, significant reduction in electoral cost. Simultaneous elections can cut down the enormous financial burden on political parties and government. Simultaneous elections पॉलिटिकल पार्टी एंड गवर्नमेंट के इनॉर्मस फाइनेंशियल बर्डन को कट डाउन कर सकता है। प्रीवियस लोकसभा इलेक्शन एक्सपेंडिचर इन 2024 अबाउट 1 लाख करोड़, इन 2019 अबाउट 55,000 करोड़, इन 1998 9,000 करोड़। दिस मनी could instead be allocated for healthcare, infrastructure and education। 1998 में टोटल इलेक्टोरल कॉस्ट 9,000 रहा था, लोकसभा इलेक्शन का कॉस्ट है। 2019 में 55,000 तक करोड़ इंक्रीज हुआ। 2024 इट मींस लास्ट लोकसभा इलेक्शन में ये 1 लाख करोड़ तक इंक्रीज हुआ। इनॉर्मस फाइनेंशियल बर्डन को अगर कट डाउन किया जाता है, इट मींस साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, देन ये फंड हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन के लिए एलोकेट किया जा सकता है। नंबर 2, streamlining governance and reducing policy paralysis. Frequent elections make government into perpetual campaign mode, due to which long-term decision making delayed. Frequent elections गवर्नमेंट को perpetual campaign मोड में रखती है
लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग डिलेड होते हैं। नंबर 3, curtailment of electoral malpractices. The frequency of elections related multiple opportunity for illegal vote buying, misuse of state resources, and deployment of money power. Number 3, enhanced voter engagement and turnout. Repeated elections become voter fatigue, due to which participation often dropping. Number 4, optimized utilization of security forces. Elections need heavy deployment of security forces, hurdles their primary duties. इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का हैवी डिप्लॉयमेंट करना होता है, इससे उनके प्राइमरी ड्यूटी हर्डल होती है। नंबर 5, मिनिमाइजिंग डिसरप्शंस टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस डिसरप्ट लोकल इकोनॉमी ड्यू टू एक्सटेंडेड बैन ऑन बिजनेस एक्टिविटीज सच एज लिकर सेल्स, ट्रांसपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एंड लेबर डाइवर्जेंस। नंबर 6, ग्रेटर अलाइनमेंट इन डेवलपमेंट गोल। Simultaneous elections can strengthen cooperative federalism by aligning the developmental goal of central and state governments. Key challenges related with simultaneous elections. Simultaneous elections से related key challenges इंडिया में क्या क्या हैं? नंबर 1, constitutional and legal complexities. नंबर 2, administrative and operational challenges. नंबर 3, potential threat to federalism. नंबर 4, disruption of democratic accountability. Number 5, disruption due to premature resolution. Number 6, political resistance and lack of consensus. Number 7, delayed electoral justice and dispute resolution. Number 1, constitutional and legal complexity. Implementing one nation, one election require amendment in various articles such as Article 83, 85, 172 and 356, which govern the tenure and resolution of legislation. वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस आर्टिकल्स सच एज 83, 85, 172, 356 के अंदर अमेंडमेंट करने होंगे। ये सभी आर्टिकल लेजिस्लेचर का टेन्योर एंड डिसोल्यूशन से रिलेटेड है, रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट दियर डेमोक्रेटिक वैलिडिटी। Synchronizing state elections would require curtailing or extending the tenure of some state assemblies, raising questions about their democratic validity. स्टेट इलेक्शंस को लोकसभा इलेक्शंस के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए कुछ स्टेट असेंबलीज के टेन्योर को या तो एक्सटेंड करना होगा या कर्टेल करना होगा, जो कि डेमोक्रेटिक वैलिडिटी से रिलेटेड वेरियस क्वेश्चंस रेज कर सकता है। इफ आर्टिकल 356 मिसयूज्ड, इट कुड डिसरप्ट सिंक्रोनाइजिंग टर्म्स। आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग अगर कुछ स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है, इट मीन्स अगर किसी स्टेट असेंबली के अंदर प्री मैच्योर डेजोल्यूशन हो जाता है स्टेट असेंबली का, और वहां पर अगर अदर रीजन से भी अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है ताकि इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज किया जा सके, ये भी डेमोक्रेटिक बेस पर वैलिड नहीं होगा। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस। Conducting simultaneous election for all state assemblies and Lok Sabha would require massive administrative and logistical planning. लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के लिए सिमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट कराने होंगे, देन इसके लिए मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिकल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर 3, पोटेंशियल थ्रेट ऑफ फेडरलिज्म। वन नेशन वन इलेक्शन में डाइल्यूट द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स एज लोकल इश्यूज कुड बी ओवरशैडोड बाय द नेशनल एजेंडाज एंड कैंपेन। वन नेशन वन इलेक्शन स्टेट के ऑटोनॉमी को डाइल्यूट कर सकता है बिकॉज लोकल इश्यूज नेशनल एजेंडा एंड कैंपेन के अंदर ओवरशैडो हो सकते हैं। नंबर 4, डिसरप्शन ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस एक्ट एज अ कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म which allow voters to assess government regularly. Frequent elections continuous accountability मैकेनिज्म को सेट करके रखते हैं।
जिससे गवर्नमेंट के रेगुलेटरी वोटर्स बेटर तरीके से असिस्ट कर सकते हैं। नंबर 5, डिसरप्शन ड्यू टू प्रीमैच्योर डिसोल्यूशंस। If a government collapses prematurely in center or in a state, the entire synchronized election cycle would be disrupted. सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट अगर प्रीमैच्योरली कोलैप्स होती है, देन एंटायर सिंक्रोनाइज्ड इलेक्टोरल साइकिल डिसरप्ट हो सकता है। नंबर 6, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस एंड लैक ऑफ कंसेंसस। वन नेशन वन इलेक्शन आइडिया फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, especially regional parties who fear losing relevance in a synchronized system. वन नेशन वन इलेक्शन का वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ओपोज कर रहे हैं बिकॉज रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को फियर है कि सिंक्रोनाइज सिस्टम के अंदर इन पार्टीज का रेलेवेंस जीरो हो सकता है। नंबर 7, डिलेड इलेक्टोरल जस्टिस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। Simultaneous election could create a problem for judiciary in addressing electoral-related disputes. Simultaneous elections जुडिशरी के लिए एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट को एड्रेस करना जुडिशरी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। हाउ simultaneous elections आर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। simultaneous elections किस तरह से फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी के आइडिया के अगेंस्ट हैं? अंडरमाइनिंग प्लूरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। The federal structure is sustained by a plurality of political parties and both at state and central level and plurality of democratic contest between them. फेडरल स्ट्रक्चर तभी सस्टेन करता है जब पॉलिटिकल पार्टीज के बिटवीन प्लूरलिटी शो होती है और इनके बिटवीन जो भी डेमोक्रेटिक कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें भी प्लूरलिटी होनी चाहिए, तभी किसी भी कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है। Simultaneous election undermining this plurality। Simultaneous elections इस plurality को undermine कर सकते हैं। State level issues will be subsumed into the national। Indian democracy at the central and the state level take its own set of claims, demands and aspirations। Simultaneous elections अगर इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं, then state level issues नेशनल इश्यूज के साथ सबज्यूम हो सकते हैं, बिकॉज स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल इश्यूज अलग होते हैं, क्लेम्स अलग होते हैं, डिमांड अलग होती है, एस्पिरेशंस अलग होती हैं। Simultaneous elections may blur these distinct forms and arenas of democracy. As a result, state level issues will be subsumed into a national. What measures can be adopted for effective implementation of one nation one election? वन नेशन वन इलेक्शन के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन से मेजर्स हमें एडॉप्ट करने होंगे? नंबर 1, क्रिएटिंग अ डिजिटल इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम। नंबर 2, यूज ऑफ एआई फॉर इलेक्शन रिसोर्स एलोकेशन। नंबर 3, स्ट्रेंथनिंग फेडरल सेफगार्ड फॉर रीजनल रिप्रेजेंटेशन। नंबर 4, सिटीजन एंगेजमेंट थ्रू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मैकेनिज्म। नंबर 5, कंडीशनल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर स्टेट टू अलाइन वन नेशन वन इलेक्शन टर्म। नंबर 6, establishment of a contingency election fund. Number 7, gradual integration of digital voting platforms. Number, creating a digital electoral management system. Need to develop a comprehensive digital platform to manage one nation, one elections complex logistics. DEMS could integrate polling booth allocation, voter rolls, candidate filling, and result management. Number, use of AI for election resource allocation. AI can help in allocate election resources like EVMs, personnel, and security forces based on region-specific needs. AI-powered simultaneous can identify high-risk areas such as conflict-prone regions, predict voter turnout, and ensure resource optimization. Number 3.
Strengthening federal safeguard for regional representation. Ensure mechanism to prioritize of state level issues. Need to introduce mandatory regional debate or televised state specific forums during elections to give visibility to local issues. Number 4. Citizen engagement through participatory democracy mechanism. Encourage citizens to participate in shaping simultaneous elections. Host online opinion polls, public consultations to build awareness and to know public opinion. Number 5. Conditional financial incentives for a state to align a one nation, one election term. Offer financial incentives to states like high devolution of central fund for aligning their election cycle with one nation, one election. State agreement to shorten or extend their assembly term could be given additional funding for development project. Number 6. Establishment of a contingency election fund. Need to create a contingency fund for handling unexpected elections due to government collapse. This fund should be maintained by the Election Commission of India and used to manage mid-cycle elections. Number 8. Gradual integration of a digital voting platform. Introduce secure digital voting mechanism for some special category of voters such as urban migrants for NRIs. Digital voting could reduce logistical burden and enable wider participation in simultaneous elections. This is PYQ related to this article. So thanks for watching this video.